سری نگر کی ڈاؤن ٹاؤن کی تاریخی جامع مسجد میں مسلسل 10ویں جمعہ پر رہی مسلسل پابندی، اسرائیل کی غزہ پر جارحیت اور ممکنہ احتجاج اور لا اینڈ آرڈر کو بنائے رکھنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات، عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں مایوسی۔ جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی پالیسی کے خلاف زمینی سطح پہ طلباء اور والدین میں تشویش، داخلہ لینے والے طلباء سے 10ویں جماعت کے امتحانی فارم لینے نہ لینے کے سرکار کے سرد مہری پر والدین میں تشویش، بوس نے ریاستی زمین پر قائم پرائیویٹ اسکولوں میں داخلے پہ اٹھائے سوالات۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں منشیات فروش گرفتار، معاشرے سے منشیات کی وبا کے خلاف جموں کشمیر پولیس کی جنگ جاری، خصوصی ناکہ پولیس اسٹیشن پٹن نے لگوایا۔ بارہمولہ پولیس نے سال رواں کے دوران 243 مقدمات کیے درج، 426 منشیات فروش گرفتار۔ اور وادی بر میں ونٹر بریک کے بعد اسکولوں سے چھٹیاں ملنے کے ساتھ ہی طلباء کے اذہان کو بہتر کرنے کے لیے سرکاری سطح پر کوششیں جاری، اسٹیڈیموں کا رخ کرنے کا ڈاکٹروں کا مشورہ، بچوں کے والدین نے کیا مطالبہ، کہا بچوں کو اسٹیڈیموں تک لانے لے جانے کی ذمہ داری والدین کی، دیگر غیر ضروری کاموں سے، موبائل گیمز سے اور ایڈکشن سے بچنے کے لیے بچوں کا اسٹیڈیم کا رخ کرنے کا سلسلہ جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ نیوز ایٹ 6 کے آج کے شمارے میں اپنے میزبان ترجمان الاسلام کا آپ تک سلام پہنچے۔ ٹیلی ویژن نشریات کے ساتھ ساتھ لاگ ان کریں ہماری ویب سائٹ پہ، اور اس کے علاوہ انسٹا، یوٹیوب کے ساتھ ساتھ فیس بک کے نشریات آپ اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر، ملک بھر اور دنیا بھر میں۔ ناظرین، شروعات کرتے ہیں تاریخی جامع مسجد میں آج کی خبر کے ساتھ۔ ناظرین، مسلسل 10ویں جمعہ کے موقع پر آج بھی ڈاؤن ٹاؤن کی تاریخی جامع مسجد میں اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر نماز جمعہ کی ادائیگی پر انتظامیہ نے ایک بار پھر روک لگا دی۔ ہمارے نمائندے فیصل ریاض کے مطابق علاقے کے آس پاس میں، حالانکہ نوہٹا جامع مسجد کے آس پاس میں ممبر محراب خاموش رہنے کے بعد عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں مایوسی چھائی ہے۔ مسلسل صدر دروازہ مقفل ہونے کے بعد بیریکیڈز سے یہ اشارہ صاف ہے کہ تاریخی جامع مسجد میں چونکہ فرزندان توحید کی تعداد، جن کی تعداد لاکھوں میں بتائی جاتی ہے، نماز جمعہ میں خطبہ اور اس کے بعد واعظ و تبلیغ سننے کے بعد نفل نمازوں کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہتا ہے، اور وقتاً فوقتاً کئی ایک معاملات پر پرامن احتجاج بھی ہوئے ہیں۔ غالباً اسرائیل کی موجودہ جارحیت کی وجہ سے مسلسل اور 10ویں جمعہ کے موقع پر آج بھی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ انفرادی یا اجتماعی طور ادا نہ ہو سکی۔ اسی بیچ میں ہمارے نمائندے فیصل ریاض کے مطابق مارکیٹ کھلا ہے، اور جامع مسجد کے آس پاس اور عقب میں جو مارکیٹ موجود ہے وہ کھلا ہے۔ خریداروں کی صرف کمی کا احساس ہوا۔ تاریخی جامع مسجد میں مسلسل طور پر سول اور پولیس انتظامیہ نے فی الحال یہ فیصلہ لیا ہے، انتظامیہ کے ساتھ مل کر، کہ فی الحال کوئی بھی ایسا موقع نہیں آئے گا جس سے لا اینڈ آرڈر میں خلل پڑنے کا خطرہ لاحق ہے۔ فیصل ریاض کے مطابق کئی ایک مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے بات کرتے ہوئے کہا کہ نماز جمعہ یہاں پہ ادا نہ ہونے کا غم انہیں آخری وقت تک ستاتا ہے۔ تاریخی جامع مسجد اور باقی جگہوں پر جب آپ نماز جمعہ یا نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں تو روح کو اور زیادہ بہتری آ جاتی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ضلع انتظامیہ سے کہ تاریخی جامع مسجد میں نماز کی ادائیگی پر اجازت ملنی چاہیے۔
आज 10वें रोज भी मुसलसल हिस्टोरिक जामिया मस्जिद श्रीनगर नमाज के लिए बंद रही और उसके साथ साथ मीर वाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी गई। आपको बता दें कि इसराइल और फ़लस्तीन जंग के बाद जहाँ सरकार के पास खदशा थे, अप्रहेंशन थे कि यहाँ पे नमाज के बाद एहतजाज हो सकते हैं, ताहम उन एहतजाज को रोकने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक रखने के लिए एहतियाती तौर पर यह फैसला लिया गया था उस टाइम, और आज भी ये फैसला बरकरार है। आज 10वें रोज़ भी 10वें जुम्मा भी तवारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज की अदायगी नहीं की गई। मस्जिद के जो मरकजी दरवाजा उस पर ताला लगाया गया और गिरदोनवा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। अगरचे गिरदोनवा में जो भी छोटी बड़ी मसाजिद है वहाँ पे आज जुमा की तकारीब का एहतमाम किया गया। उसके साथ साथ जो मार्केट है जामिया मस्जिद का, जो बाकी मार्केट है वो भी खुला है, लेकिन जब बंद की बात करते तो बंद सिर्फ जामिया मस्जिद श्रीनगर ही है। आज 10वें रोज भी इसको एहतियाती तौर पर बंद रखा गया और यहाँ पे नमाज की इजाजत नहीं दी गई। फैसल रियाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवहटा डाउनटाउन की तारीखी जामा मस्जिद से इस रिपोर्टिंग के लिए कि 10वें रोज़ मुसलसल यानी 10वें जुमा के मौके पर जो नमाज जुमा है वो अदा नहीं हो सकी। इधर मीर वाइस कश्मीर डॉक्टर उमर फारूक भी आज अपनी रिहाजगाह से मुसलसल जामा मस्जिद तक नहीं आ पाए और जिसके कई एक वजूहात बताए जा सकते हैं। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में 10वीं जमात के तलबा के अजहान बहुत ज़्यादा मुंतशिर हो चुके हैं, क्योंकि 10वीं जमात के तलबा के लिए जो हुक्मनामा हुआ है जम्मू कश्मीर में, इस तरह से हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगाया जा चुका है। क्योंकि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने रियासती ज़मीनात पर कायम प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने वाले तलबा से 10वीं जमात के इम्तहानी फॉर्म देने से इनकार कर दिया। लेने से भी और देने से भी इस इकदाम ने खदशात को जन्म दिया। पिछले हुकूमतों की तरफ से हिदायत के खिलाफ J&K हाई कोर्ट के जारी करदा हुक्म इम्तनाई के खिलाफ वर्जी में बोर्ड के इकदाम पर सवाल उठाए गए हैं। इसके तनाजुर में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हुक्म दिया कि वो तमाम प्राइवेट स्कूल जो रियासत की ज़मीन पर कायम हैं, इनमें दाखिल बच्चों की स्कूलिंग फौरी तौर पर ममनू कर दें, बंद कर दें। स्कूलों से कहा गया कि वो अपने मुतल्लिका तलबा के हक में स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट जारी करें, ताकि इन्हें इस सिलसिले में उनके वालिदैन की रजामंदी से मशरूत करीबी स्कूलों में दाखिला दिलाया जा सके। तमाम निजी स्कूलों के मालिकान ने इज्तिमाई तौर पर अदलिया से रुजू किया और हुकूमत के हुक्म पर रोक लगाते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से राहत तलब की। इस कानूनी मुदाखलत के बावजूद इन प्राइवेट स्कूलों में दाखिल होने वाले जमात 10वीं के तलबा के इम्तहानी फॉर्म कबूल करने से जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के मुसलसल इनकार ने हजारों तालीमी उमंगों को खतरे में डाल दिया। इसी बीच में साबिक वजीर आला पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरप्रस्त महबूबा मुफ्ती ने अब से कुछ देर पहले इस खबर के सुनने के बाद अपना ट्वीट जारी किया। बड़ा तकलीफ है कि जब बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इनकार कर रहे हैं 10वीं जमात के इम्तहानी पर्चों में बैठने के लिए, जो फॉर्म वगैरह लेने थे उस पर इनकार किया जाता है। उन्हें कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद भी जब आप इस तरह से हुक्म इब्तनाई को रद्द करते हैं तो ये किस तरह का मामला है। उन्होंने फौरी तौर पर अपने ट्वीट में लिखा है कि इस तरह के मामला उठाने से आप लातादाद स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को संवारने के बजाय खराब करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मोटिव किस तरह से किया गया, जब हाई कोर्ट के हुक्म इब्तनाई में आप लोगों को हुक्म दिया जा चुका है कि इस तरह की कोई कोशिश न करें। महबूबा मुफ्ती ने ज़बरदस्त तशवीश का इजहार करते हुए इस मसले से मुतल्लिक अपनी गहरी और तशवीशनाक सूरत हाल से जम्मू कश्मीर की इंतजामिया को फौरी तौर पर इस फैसले से अपना रद्दअमल जाहिर करने के लिए कहा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे बड़ा तकलीफ हुआ जब सुना कि 10वीं जमात के इम्तहानी फॉर्म में जो प्राइवेट स्कूलों के लिए एस्टेब्लिश किए गए गाइडलाइंस है उसको आज ख़त्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मामला बड़ा इंसानी ज़ावियों का है, तालीमी माहौल का है और सरकार को फौरी तौर पर इस पे अपना फैसला सुनाना चाहिए और तलबा के हक में नजरसानी बहुत लाजमी है। इधर CPIM के स्टेट सेक्रेटरी साबिक MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी आज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे के साथ बातचीत करते हुए इस अमर पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया। तारिगामी ने कहा यह फैसला समझ से बाहर है और फैसले के आसपास में बहुत सी चीजें नजर आने लगी है। तारिगामी ने अपने बयान में कहा, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ है
कि जो तलबा प्राइवेट स्कूलों में मुबैना तौर पर सरकारी ज़मीन पर वाक़ा है, उनके फार्म 10वीं जमात के कबूल करने से इनकार किया है। यह हद दर्जा अफसोसनाक भी हैं और अहमकाना भी है। वो इसीलिए कि बच्चों का क्या कसूर है इसमें, और आज 1 साल तक आपने रोका नहीं उन बच्चों को, उन स्कूलों को, या उसके बारे में बाज़ाब्ता नोटिस निकाली जानी चाहिए थी। बहुत और नाज़रीन, अब आपको शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला के पट्टन इलाके में पुलिस स्टेशन पट्टन के खुसूसी नाके के बाद आप तस्वीरों में देख पाएंगे बारामुल्ला में सब कुछ ठीक ठाक ही नहीं है। दरअसल माशरे से मनशियात की वबा के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने शुमाली जिला के बारामुल्ला में एक और मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से नशा आवर मवाद बरामद किया। हमारे नुमाइंदे राही निसार के मुताबिक पुलिस स्टेशन पट्टन की एक पार्टी ने स्टेशन हाउस ऑफिसर की सरबराही में शिरपोरा पट्टन में एक नाका चेकिंग के दौरान एक शख्स जो अपने ही कांधे पर एक बैग उठाए हुआ था को रुकने का इशारा किया और कहा कि तलाशी के दौरान इनकी तहवील से 12 किलो बंग पथरी जैसा मवाद बरामद किया गया, जिसके बाद इसको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन पट्टन में बंद कर दिया गया। बयान में गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त गुलाम मोहिद्दीन गनाई व मरहूम अब्दुल रहीम साकिन शिरपोरा पट्टन के बतौर हुई। पुलिस ने ज़मन में पुलिस स्टेशन पट्टन में मुतल्लिका दफात के तहत एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। काबिल जिक्र है कि मनशियात की वबा के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि समाज के मुख्तलिफ मकतबा हाई फिक्र ने मुसलसल इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया। पुलिस ने रवां साल के 10 महीनों के ही दौरान बारामुल्ला से 242 मुकदमे दर्ज किए, 425 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मनशियात के कारोबार से हासिल की गई करोड़ों रुपया मालियत की जायदादों को जब्त किया गया। यह तो पुलिस की बात हुई, लेकिन पुलिस ने श्रीनगर शहर के राजबाग इलाके के नजदीक रेडियो कॉलोनी है, मकामी दुकानदारों ने आज अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी और कुछ वक्त तक अपने लबों को खामोश रखा। लेकिन उसके बाद टेलीफोन कॉल आया न्यूज रूम को और मुझे भी फोन आया। पता चला कि रेडियो कॉलोनी जवाहर नगर श्रीनगर के दुकानदारों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्रैफिक विंग पर अपना जबरदस्त गम और गुस्से का इजहार किया। मकामी दुकानदारों ने कहा, जो ही वो अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं या खरीदार गाड़ी पार्क करता है तो ट्रैफिक पुलिस गाड़ी का फोटो खींचकर चालान करते हैं, जो बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि जितनी हमारी कमाई नहीं होती है उससे ज्यादा हमें ई चालान आते हैं और ये पैसा हमें पेनल्टी के तौर पर भरना पड़ता है। उन्होंने इस हवाले से सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर सिटी मुजफ्फर अहमद शाह और मुतल्लिका एसडीपीओ महबूब अहमद और मुतल्लिका जो इंस्पेक्टर्स या एसएचओज या बाकी कंसर्न पुलिस अफसरान ने उनसे मुदाखलत की अपील की है। तस्वीरें आज सुबह की है। जवाहर नगर इलाका रेडियो कॉलोनी के बाहर जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्रैफिक विंग पर मकामी लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दाएं से बाएं आपकी गाड़ियां लगी हैं और गाड़ियों में आपका खरीदार जो है वो नीचे आकर कुछ खरीदेगा। ये कोई होलसेल का मार्केट नहीं है। ये मार्केट जो है इसमें फ्रूट है, इसमें आपकी सॉफ्टी वगैरह मिलती है, इसमें आपको फोटो स्टेट वगैरह की शॉप है और इसमें कबाहत में हमें कोई कबाहत नहीं है कहने में। एक्सट्रैक्ट्स और बाकी शोरूम्स हैं, लेकिन दुकानदारों की मांग है कि कम वक्त के लिए जब खरीदार आ जाएगा तो इसमें कौन सी दुनिया खत्म हो जानी है अगर गाड़ी 2 मिनट के लिए रुकेगी, 3 मिनट के लिए रुकेगी बगैर इतला। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना जो विंग मुतहरिक किया है और फौरी तौर पर फोटो खींचकर अभी कुछ देर बाद मैसेज आ जाता है कि खरीदार की जो गाड़ी है उस पर चालान हुआ है, उससे इतना पैसा भरना है। ये सूरत हाल एक इलाके की नहीं है, बल्कि तंग आमद ब जंग आमद के मस्दाक इन मकामी शहरियों ने, दुकानदारों ने फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान से अपील की है कि इस तरह की कार्रवाई करके उनके रोजगार पर शब-ए-खून मारा जाता है। खरीदारी करने के लिए खरीदारों ने अब इस मार्केट का तकरीबन मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया है, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात और उसके बाद वीवीआईपी मोमेंट की वजह से और कई एक वजूहात की वजह से, जहां पहले ही पार्किंग जोन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने
वाजिया किए हैं कहां पे गाड़ी रखवानी है, रखनी है, लेनी है, ले जानी है। लेकिन थोड़ा सा और आप सब्र कर देते तो शायद ट्रैफिक पुलिस किसी वक्त में आने जाने के लिए कहा जाता था। आज आप किसी भी जगह पे जाए, फोटो खींचकर आपको मैसेज चालान का घर पहुंचता है। जम्मू कश्मीर पहले ही माली मुश्किलात से दो चार है और किसी गैर जरूरी जगहों पर या भीड़ भाड़ वाले मकामात पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को मजीद मुतहर्रिक किया जा सकता है, नफरी को बढ़ाया जा सकता है, अफसरान को जिम्मेदारी दी जा सकती है। आप अपने फराइज को खत्म करते हैं और ई चालानी का सिलसिला आपने शुरू किया है। मकामी दुकानदारों की जुबान कुछ इस तरह से कहने लगी। मेरा नाम सैयद इकबाल वानी है। हम यहाँ पे रेडियो कॉलोनी राजबाग से हैं। शॉपकीपर्स से सारे लोग, हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती है, उनके चालान किए जाते हैं। आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी की गई, आप यहाँ पे न्यूज़ बनाने आए, आपका भी फोटो उठ गया है। हमारे पेशेंट्स उतारने हैं, कस्टमर 1 मिनट के लिए आ रहा है, हमारा चालान बनाया जा रहा है सबसे पहले गाड़ी का। उसके बाद ये बाकी, अगर जवाहर नगर आपका इंता कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ का चालान नहीं बना रहे हैं। आपकी एक गाड़ी होती है जो सुबह 9 बजे से आपके यहाँ पे आके चालान बनाना स्टार्ट कर देती है। अगर हमें चालान ही भरने हैं, हम 2 रुपए का काम करते हैं यहाँ पर। ये रेडियो कॉलोनी राजबाग तो ये मामूली 2 मिनटन और ट्रैफिक वोलो सह फोटो तुलित चलवन गाड़ी। हालांकि कस्टमर रोजान 2 मिनटन या 3 मिनटन या 4 मिनटन, मगर तम गाड़ी मज बसान बोन कहें क्या तिमन फोटो तुलन तुज गाड़ी आई मे बी अत मा तुलमुत फोटो। हालांकि कत साइड गाड़ी लगित अत फोटो तुल। मे ओतर मदर सह तम पैरलस तो सह पे 4 नफरन कड़ गुट गाड़ी रूद मिनटस देवारस सत कड़ा सह कड़ मे तमिक फोटो वीडियो बनोमुत ब्या 2 हमारी अपील भी ट्रैफिक पुलिस चीफ मुजफ्फर शाह साहब से होगी कि इन जगहों पर जहां पर आपको करनगर, मायसमा और इसके गिरदनवा में जब आपने गांव कदर लाल चौक का रुख करना है तो वाकई ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है। एक गाड़ी के रुकने से लाइन सी लग जाती है और यह भी सोशल पॉलिसिंग में है कि आपको इस तरह की कार्रवाई करने का हक है। लेकिन उसके बाद जो मामलात इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर होते हैं, ये फ़ोटो खींच कर जो है 100 रुपये की चीज़ आपने ख़रीदनी थी या आपने कटिंग वगैरह सैलून वगैरह जाना था तो आपने 500 रुपया एडवांस देना है। इससे जम्मू कश्मीर का इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर जो हमारा इक़्तिसादियात का बजट है, इसका असर किस पे पड़ेगा। हम सबको शायद अपनी जिम्मेदारियां निभानी होगी, लेकिन पुलिस को भी थोड़ा सा सब्र तहम्मुल और ज़्यादा बरतना होगा। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सर्दियां शुरू होने के बाद बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां पड़ी है, लेकिन बेशतर वक्त बच्चे बदकिस्मती से मोबाइल फ़ोन के साथ एडिक्ट हो जाते हैं और पूरा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं। यूट्यूब, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और वीडियो गेम्स और बाकी चीज़ें खेलने के बाद बच्चे के जो अज़ान है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। मामूली बातों पर बच्चा गुस्सा कर देता है और इनफरादी अलग कमरे में जाके बैठता है, माँ बाप से अलग जाके बैठता है और उसे अपने फ़ोन पर, खुदा के लिए इन फ़ोन्स को उनके हवाले मत कीजिए, सरेंडर मत कीजिए, खुद सुपुर्दगी मत कीजिए और कुछ अवकात के लिए आप उनको फ़ोन दे सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर यूथ स्पोर्ट्स काउंसिल ने अपना खुसूसी जो है कैंप लगवाया है, जिसमें आप श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम यानी बख्शी स्टेडियम में जाकर आप इंडोर्स में जाके आप अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं पिचेट सैलेट में। तस्वीरें देखिएगा, जिस्मानी नशोनमा के लिए कितना ज़रूरी है। आपका एल्बो, आपका आर्म, आपकी कोहनी, आपका दिल, आपका दिमाग एक्सरसाइज में लगा रहता है। ये खुसूसन बच्चों के लिए लगा है जो इस वक्त स्कूलों में छुट्टियां पड़ी है। बच्चे बच्चियां कितनी बड़ी तादाद, बड़ा खुश हुआ दिल। हालांकि इतवार 5 बजे आप गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पे पूरा आधे घंटे का स्पोर्ट्स सेगमेंट मेरे साथ देखेंगे, इस पे जो मुसलसल 10 साल से लगातार चल रहा है, इतवार 5 बजे। लेकिन उसके बाद जब मैं प्रोग्राम करके बाहर आया तो मुझे बच्चों के माओं ने बुलाया, उन्होंने कहा कि हम कुछ बोलना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप बच्चे का अजहान तब्दील हुए हैं, जब घर आते हैं तो उनकी सोच में कितनी गहराई आई। कहते हैं बहुत थके होते हैं, वापस आते हैं, मोबाइल के बजाय वो खाने पीने, जूस और बाकी खाने पीने, फ्रूट वगैरह का मुतालबा करते हैं, जो एक अच्छी बात की खबर है। लेकिन जम्मू कश्मीर में छुट्टियां पड़ी हैं, खुदा के लिए आप बच्चों का खास ख्याल रखें, मोबाइल से दूर रखें, बाकी बुरी आदतों से दूर रखें, ड्रग एडिक्शन के से दूर रखें, स्मोकिंग वगैरह जो है उससे दूर रखने की कोशिश करें। लेकिन माओं को सुनते हैं जो इन बच्चों के साथ खड़ी है। 2 घंटे का कोर्स है, 2 घंटे के बाद इन माओं के साथ वापस बच्चे और बच्चियां घरों को जाएंगे।
हमारा नाम इरफाना है और हम नटीपोरा से आए हैं। तो हमने यहाँ पे अपने बच्चे को लाया और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा ये काम किया। जो अपने बच्चे के लिए मैंने सोचा कि उनको मैं यहाँ पे लाऊं। जो मतलब आजकल के बच्चे हम देख रहे हैं उनको ज़्यादातर स्पोर्ट्स के थ्रू नहीं, वो ज़्यादातर जाते हैं मोबाइल के थ्रू। मोबाइल से ही घर पे वो बैठते खेलते रहते हैं। तो लेकिन हाँ, यहाँ पे हमने अपने बच्चे को ला के हमने ये मेहनत ये काम किया कि हमने अपने बच्चे को यहाँ पे लाया। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के सर की वजह से जो उन्होंने सपोर्ट वहाँ से भी किया और हमने यहाँ पे अपने बच्चे को लाया। आज हमारा बच्चा बहुत आगे है एज़ कम्पेयर टू बाकी बच्चों को। अगर हम देखें जो मोबाइल से, हाँ इतना है थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, बच्चे को यहाँ पे लाना है। वो 2 घंटे बच्चा यहाँ पे रहता है लेकिन उसका मतलब जो जहन भी है वो अच्छी तरह से एक्टिविटी यहाँ पे करता है। मतलब उनके पास टाइम ही नहीं है कि ये मोबाइल मांगे मोबाइल देखें, इनके पास उतना टाइम ही नहीं रहता है अब, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे एक्टिविटी में इन्होंने अपना बाकी टाइम मसरूफ़ किया है। तो मोबाइल की तरह तो इनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो मेरे को 1 साल हो गया यहाँ पे बच्चों को लाते हुए, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ये प्रैक्टिस भी करते हैं, खेलते भी अच्छे से है और इनका फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत अच्छा है। और एक ज़रूरी है कि ज़्यादातर ये मोबाइल से दूर रहे हैं। जो आजकल मोबाइल में है वो उनसे दूर है। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स इन्होंने सर ने यहाँ पे स्पोर्ट्स खेल निकाला है, ये थंका पेंचिक स्लाट या कोई भी स्पोर्ट्स का कोई भी हो, तो ये बहुत अच्छा है कि बच्चों को। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को, इन साउंड बाइट्स को चलाने का मतलब है कि आप बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और बच्चों ने मोबाइल हाथ में लेने के बाद जो है आने वाले वक्त में ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा मुश्किल से आपको कंट्रोल हो जाएंगे। जितना हो सके घरों में या घर के बाहर स्टेडियम का रुख कराएं और कुछ वक्त अपना भी आप बच्चों के साथ गुजारें और यही आने वाले वक्त में आपके मुस्तकबिल का रास्ता तलाश करेंगे। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। सनम एजाज स्टूडियो में पहुंच चुके हैं मेरे साथी लद्दाख नामा लेकर, लेकिन उसके बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हम्दो नासिर।